टेस्टिमनी को सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम पूजा है और साथ में इनके हस्बैंड है, ये बटाला के रहने वाले हैं। 23 मार्च 2015 को इनकी शादी हुई थी और उसके बाद जब इन्होंने बेबी के लिए सोचा तो मई 2015 में 2 महीने बाद जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी जब कंसीव हुई तो उसके दौरान इनको अजीब अजीब सी घटनाएं इनके साथ होना शुरू हो गई, डरावने सपने आना और इनको ब्लड नजर आता था। और उसके बाद इनका जो बेबी था वो पेट के अंदर ही डेड हो चुका था। जैसे ही वो ड्रीम आया अगले दिन ब्लीडिंग हुई और इनका बच्चा पेट के अंदर ही मर गया। और उसके बाद अपोस्टल जी दूसरी बार जब ये बहन जुलाई 2015 में फिर से इन्होंने कंसीव किया तो फिर से सेम हालात इनके साथ हुए, फिर से बच्चा पेट के अंदर ही डेड हो गया और उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव होना टोटली बंद हो चुकी थी और पीरियड्स इरेगुलर हो गए। 4-4, 5-5 महीने के बाद पीरियड्स आते थे और जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ जब डॉक्टर के पास गए, जब टेस्ट हुए तो पता चला कि इस बहन की ओवरीज में बहुत सारी पानी वाली मल्टीपल रसौलियां हैं और हस्बैंड के जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। और डॉक्टर ने दोनों को ट्रीटमेंट के लिए बोला 5 साल तक। ओके, आप इस सिस्टर को माइक देना। जब भी आपको प्रेगनेंसी होता था, गर्भवती होती थी आप, तो आपको सपना आता था? यस ऊंचा बोलना है। यस, क्या सपना आता था? ऐसे ही जैसे खून दिखता है। खून दिखदा सीगा ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਅਸਲੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈੱਡ ਹੋਏ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਨਾਲ? 5 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈੱਡ ਹੋਏ ਟੋਟਲ। 2 ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਚ 24 ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਟੋਟਲ ਹਾਂਜੀ, 5 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈੱਡ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਇੱਕਦਮ ਖਾਲੀ ਸੁਨਸਾਨ ਵਰਗੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੇਖ ਲਗਾ ਦੇ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾਲ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਸ ਚ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੋ, ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਕੀ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੜਾ ਇਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਾਣੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥਾਣੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗ ਰਹਿਣਾ। ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸੀਗਾ? ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਟੋਟਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 2 ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ। ਟੋਟਲ 5 ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਨਾ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ? ਲੈ ਸਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਣਾ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ? 5। 5 ਟੋਟਲ 5 ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਸੱਦਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਸੱਦਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ 2015 ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ।
ਦੂਸਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ 2015 ਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕੀ ਜੀ। 10 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 2021 ਚ, ਹਾਂਜੀ ਚੌਥੀ 2022 ਚ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਵੀਂ 2023 ਚ। ਹਾਂਜੀ ਟੋਟਲ 5 ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਈਆਂ। ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਡ੍ਰੀਮ ਆਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਲੱਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੇਬੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ 10 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਚਾਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਡੈੱਡ ਹੋਏ। ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਚਰਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਰੂਸਡ ਆਪਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਰੂਸਡ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ। ਚਰਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 2018 ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੇ ਹੀ। ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹ- ਸਾਡੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਣ ਡੈ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 2024 'ਚ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਫਿਰ 2024 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਣਾ 2024 ਚ, ਹਾਂਜੀ क्यों चुप है तू? और अपोस्टल जी जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया तो गवाहियां सुनी और इनका विश्वास बढ़ना शुरू हुआ। फिर 23 मई 2024 की जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया और ਓਕੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ जी बस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਖਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। तो बाइबल कहती मुंह से क्या करना? आपने 30 रोजे रखने कल से। कितने? 5 बजे तक। आपको 4 अनॉइंटिंग ऑयल आपने लेके जाने हैं, 4 हर हफ्ते में एक अनॉइंटिंग ऑयल खत्म करना है, सिर पे लगाना है उसको। हफ्ते में एक खत्म कर देना। अगर ज्यादा है तो ज्यादा ले जाओ, 4 आज ले जाओ, फिर रिसेप्शन से और ले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। 30 रोजे रखने 5 बजे तक और 30 रोजों में आपने 2.5 घंटे रोज प्रार्थना करके अंगीकार करना है कि मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा जा चुका है और मैं परमेश्वर की संतान हूं। मुझे शैतान के ऊपर अधिकार दिया। आज के बाद शैतान मेरी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। शैतान चाहे कुछ भी करे आपके साथ, आपका सिर फिर भारी करे, फिर उल्टी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंगीकार करते रहो। इस 30 दिन में आप यहां खड़े होंगे गवाही के साथ। ओके। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ रोजे रखे, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ये क्यों नहीं बोल रहा लड़का? ये क्यों चुप है ये लड़का? ਹਾਂਜੀ ये लड़का अपोस्टल जी इन्होंने सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी जैसा आपने बोला था। अनॉइंटिंग ऑयल इन्होंने इस्तेमाल किया, फास्टिंग रखे दोनों ने। और अपोस्टल जी आपने बोला था कि 30 दिन तक आपने फास्टिंग रखनी है और 17 दिन के बाद जब चेक किया ओके शट अप। तुम्हें भी मालूम नहीं क्या कहना है। कहां परमेश्वर बताना चाहता लोगों को, क्या बताना चाहता? तुम भी फेल हो। खास चीज मैं बताना चाहता हूं। हीलिंग हो गई मेरे को पता है, बच्चा हाथ में है, सब दिख रहा है। खास चीज क्या है? इन्होंने कहा जब ये डिलीवरेंस के लिए यहां मौजूद थे, इन्होंने कहा कि उसी दिन शैतान इनको छोड़ के गया। ਉਸੇ ਦਿਨ हाँ? 2023 उसी दिन 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹ 23 की ये मीटिंग थी ਹਾਂਜੀ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2000 और 23 तरीक ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ मैं चंगा हो गया ਸੀ। ਹਾਂਜੀ सुनो, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा इनको कहे घर जाना, अंगीकार करना कि शैतान मेरे अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान फिर वापस आएगा, फिर सिर पारा। मैं तो तेरे अंदर ही हां, मैं तो किया ही नहीं। हो शैतान तो मेरे अंदर ही है। जिद्दां ही तुसी मुंह तो कढ़िया उन्हें फिर अंदर आ जाना। प्रेयर रिसीव की, अब शैतान अंदर नहीं है। परमेश्वर ने कहा नहीं, इनको ऐसे वापस मत भेजना।
अगर तू इनको ऐसे ही वापस भेजेगा, इनका जब फिर सिर भारा होगा ये कहेंगे शैतान ने किया। तो परमेश्वर ने कहा इनको आगे बोला और बता 30 रोजे रखना और रोज बोलना मेरे अंदर शैतान नहीं है। तुम्हारा सिर भारा हो, तुम्हारा फिर से वही कुछ हो, पर तुम्हारे मुंह से वही निकालना कि मेरे अंदर शैतान। यहां से गए 70वें रोजे में ये औरत प्रेग्नेंट थी। हालेलुया, हालेलुया, और ये तारीफ छोटी ये नासोर से है और अमानत से है, ये नासोर से है। हालेलुया। सुनो, चलो मान लेते हैं कि कोई शैतान नहीं होता। वो सपना आया, मैंने देखा मेरे बेबी को मार दिया, मैंने बेड के नीचे ब्लड देखा, औरत बच्चे को ले गई, सुबह उठी तो मिस करे। ओके, मान लिया शैतान नहीं होता, ये कोई मेडिकल रीजन होगा। फिर प्रेयर के बाद वो मेडिकल रीजन कैसे ठीक हो गया? जबकि 10 साल दवाई 5 साल दवाइयां खाई, स्कैनिंग है डॉक्टर की हुई, रसौलियां हैं मल्टीपल, आदमी के स्पर्म का टेस्ट भी है जो सही नहीं है, सारे टेस्ट हैं। क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी होती थी शैतान आता था, वो चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया। वो चुराता था, चला जाता था। चर्च में आए, आगे बुलाया, डिलीवरेंस हुई, दुष्ट आत्मा जाए, वो गई, मैंने कहा वो चली गई है। लेकिन अगर तुम अंगीकार नहीं करोगे कि मैं आजाद हूं, शैतान मेरे अंदर नहीं है, वो वापिस आ जाएगा तुम्हारी अज्ञानता की वजह से। तो रोजे रखो, रोजे रख के खुदा से कहो परमेश्वर मैं आजाद हूं। अब 17 दिन बाद प्रेगनेंसी हुई, पर यह बड़ी बात नहीं थी, प्रेगनेंसी पहले भी होती थी, वो तो पहले भी होती थी, पर इस बार की प्रेगनेंसी अलग थी। क्योंकि अब शैतान नहीं था, कोई सपना नहीं, कोई अटैक नहीं। अरे बिल्कुल मैंने आपको कोई स्पेशल दवाई दी? नहीं जी, नहीं कोई स्पेशल गोलियां? नहीं, कोई चिट्टियां, कालियां, नहीं, पीलियां, नीलियां? नहीं, कोई गोली नहीं दी। ये गोलियां खा के आए थे, 5 साल टेस्ट करवा के आए थे। थैंक गॉड फॉर डॉक्टर्स, वो खुदा ने भेजे। पर परमेश्वर काम करता है कई बार कि डॉक्टर्स के जरिए भी काम नहीं करता। तो मैं मालूम है परमेश्वर ने मुझे हील किया है। ये वो घर है जो औरत पुलिस स्टेशन में जाकर लिखती थी मुझे ना साथ नहीं रहना, अकेले बातें करती थी, पागलों की तरह बिहेव करती थी, टेंशन में एंजाइटी के अटैक होते थे। एक औरत के अंदर से 5 मरे हुए बच्चे निकालना, ये ट्रॉमाटाइज, ये उसको ट्रॉमा कर देता है, दिमाग में सदमा देता है। ये आप फॉरेन में चले जाओ ना, जिसके साथ एक बार मिस कैरेज हो जाए उसको थेरेपीज लेनी पड़ती हैं। आज कहां जा रही है? साइकेट्रिस्ट के पास, ये मेंटल थेरेपी लेने जा रही है। इसको सदमा लगा है, 3-3 साल थेरेपी, 5 बच्चे मरे हैं 10 साल के अंदर। आप उस घर की कंडीशन सोच सकते हो। लेकिन फैसला किया 2024 में हम लगातार अब जाएंगे, कंटिन्यू जाएंगे। अभी हम, मेरे पास पैसा नहीं होता था चर्च आने के लिए, तो क्या परमेश्वर ने इस बहाने को समझा? नहीं समझा। तुम्हारे पास चर्च आने के लिए पैसा नहीं था, पर तुम रोटी रोज खाते होगे, खाते कि नहीं खाते? तुम्हारे एक दिन के एक टाइम की रोटी का खर्चा किराए जितना है। तुमने नहीं सोचा चलो आज हम रोजा रख लेते हैं, चल मंगलवार हम रोजा रखते हैं, उसका पैसा जो बचेगा ना राशन का, उस किराए से हम चर्च में जाएंगे। पर कोई प्लानिंग नहीं। और परमेश्वर भी रुकता है, वो भी इंतजार करता है कि जब तुम मेरे सामने आओगे, अपना दिल खोलोगे, मैं भी अपना दिल खोलूंगा। अब क्या किया? फैसला किया मुझे चर्च जाना है, लगातार जाना है। आए, प्रार्थना हुई, डिलीवरेंस हुई, शैतान चला गया। परमेश्वर ने कहा अंगीकार करवा,
रोजे रखवा या अंगीकार करें शैतान जा चुका है, शैतान जा चुका है, शैतान जा चुका है। 17वें दिन चेक किया, प्रेगनेंसी, बेबी हाथ में है, दिखा दो एक बार। हालेलुया 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 खड़का दो जरा ऊंची आवाज से। हालेलुया 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 हालेलुया। शैतान को बुरे सपने आएंगे हालेलुया के, शैतान को बुरे सपने आएंगे, तुम हालेलुया का नारा मार रहे हो। आमीन आमीन। कई बार हम सफर करते हैं अपनी मैरिज में, अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंस में, अपनी बॉडी में, अपनी सेहत में, और राइट स्टेप नहीं लेते, सफर करते, पाप नहीं छोड़ते, सफरिंग्स। चर्च कब आते हैं? हफ्ते में नहीं, महीने में एक संडे में आता हूं, दूसरे संडे मेरे को काम होता है। जिंदगी की हालत पूछो तो फट्टड़ हो चुकी। जब तक तुम सही कदम नहीं लोगे परमेश्वर काम नहीं करेगा। अब क्या हो गया? अब ऐसी कौन सी दवाई दी कि वो मेडिकल रीजन खत्म हो गया कि अब बेबी हो गया? क्योंकि अगर आप बोलोगे ठीक है जी 2015-16 में ही बस मिसकैरेज हुआ, उसके बाद शायद दवाई खाने के बाद बॉडी ठीक हो गई, पर 5 साल दवाई खाने के बाद 21, 22, 23 में फिर प्रेगनेंसी हुई और फिर वही मिसकैरेज हुआ। अब ऐसा क्या हुआ? अब शैतान चला गया और जीसस सीन में आ गए। अब ये हुआ, उसने कहा तुम मेरे लहू को पिएगा, मेरे बदन को खाएगा, तुझ में जीवन बना रहेगा। इस थर्सडे को प्रभु भोज होगा और मौत को निकाला जाएगा आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ थर्सडे, संडे नहीं है अभी, ये थर्सडे होगा, ये वीरवार, परसों चौथ। अगली गवाही को सुनेंगे। ध्यान से सुनना परमेश्वर किस तरह से काम करता है। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम दिलजीत कौर है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 3 साल पहले इस बहन की दोनों टांगों ने और बाजुओं ने टोटली काम करना बंद कर दिया था और इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि ये बहन टोटली बेड पे जा चुके थे और इनकी पूरी बॉडी निर्बल हो चुकी थी और यहां तक इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि टोटली बेड के ऊपर जाने के बाद इनको टॉयलेट, बाथरूम तक भी जाया, इनसे एक कदम भी चला नहीं जाता था और इनको डाइपर्स यूज करने पड़ते थे। आपको डाइपर कौन लगाता था? मम्मी। और आप बेड पे रहे हो कितने महीने? 2। और वॉशरूम, टॉयलेट आप नहीं जा सकते थे? हाँ जी। कई बार जब आप टेस्टिमनी सुनते हैं कि पापा ये लड़की चल नहीं सकती थी और आज चर्च में आई, प्रार्थना हुई और चलने लगी, 2 मिनट में तारीफ करेंगे, बस खत्म। आ देखो खत्म, गवाही खत्म। ऐसे ही होता है ना, जैसे ये कर रहे हैं सभी। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि जब ये गवाही को हम बुलाएंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे हुआ और इसके पीछे की स्टोरी क्या है, आप हैरान होंगे कि जो गवाहियां होती हैं इंस्टेंट, उनमें कितना दर्द है पीछे की लाइफ में, किस तरह उन लोगों ने सफर किया है। कितनी उम्र है बेटा तुम्हारी? कितनी उम्र? 24? हाँ जी। 24 साल? हाँ जी। और कितना पढ़ी है तू करती सी काम या की करती सी तू? पेशेंट केयर का अपोस्टल ये बहन काम करती थी और ये खुद पेशेंट केयर का काम करती जी, थी और खुद बीमार हो गई। खुद बीमार और कंप्लीटली बेड के ऊपर रहे। और बीमारी की शुरुआत ये बुखार से हुई, हाँ जी। फिर लीवर खराब होने लग गया हाँ जी। और तुम पेशेंट की केयर करते करते खुद पेशेंट बन गई। हाँ जी। तो तुम्हें रोना नहीं आता था क्या? दर्द नहीं? क्या चल रहा था लाइफ में? बहुत गंदा फील होता था, मुझे लगता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। और तुम्हारे घर वाले डायपर चेंज करते थे, बाथरूम तुम नहीं जा पाती थी, बेड पे थी। हाँ जी। चर्च
और अपोस्टल जी बार बार हॉस्पिटल भी इन्होंने चेंज किए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, इंप्रूवमेंट नहीं थी। और इनको गाड़ी में लिटाकर इनकी फैमिली उठा के चर्च में लेकर आई और जब इनको हीलिंग हॉल में बिठाया गया, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो अपनी तरफ से जवाब ही दे दिया था कि ये हमारे बस की बात नहीं है। जब इनको लाया गया तो इनको हीलिंग हॉल में लिटाया गया और वहां पे इतनी हालत बुरी थी कि इनसे इनकी बाजू तक ऊपर नहीं उठाई जा रही थी। और जैसे ही आपने यहां से प्रेयर करी हीलिंग के लिए और अनॉइंटिंग ऑयल इनके बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, सेम सेकंड अपोस्टल जी इनकी उस मरी हुई बॉडी में जान आई, टांगों में बाजुओं में बल आया और उसी टाइम इन्होंने अपने आप को खड़े होकर चल के जब चेक किया, सेम डे अपोस्टल जी जिस दिन ये चर्च में आए सेम डे हील हुए, उसी टाइम फटाफट आगे आए अपनी गवाही को देने के लिए। ओके, जिस दिन इनकी हीलिंग हुई वो गवाही सुनेंगे हम। काफी दिनों से ये बहन कंप्लीटली बेड के ऊपर जा चुके थे और एक भी कदम इनसे चला नहीं जाता था। और आज इनकी फैमिली जो है, इनके मदर इनको उठा के गोदी में लेके चर्च में है, क्योंकि चला नहीं जाता था, खड़े तक नहीं हो पाते थे। लेकिन जैसे ही आज प्रेयर को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल लगा तो आज खुदा ने इसको हील किया। ये उस स्ट्रेचर से उठी है और कंप्लीटली खुदा ने हील किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। उस दिन देखो और आज देखो, फर्क है कि नहीं? हालेलुया, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। उस दिन पुरानी वीडियो दिखाओ जब उस दिन ये हील हुई थी। अब देखो फर्क, अब देखो जिस दिन हील हुई थी, अब देखो जब एक हफ्ते में वापस आई 2 हफ्ते। चलो बेटा अब दोबारा So गाओ हालेलुया, so गाओ हालेलुया, डबल चला, so गाओ हालेलुया, so गाओ हालेलुया।